Everyone, welcome to the channel, and in this particular video we are going to basically see how to solve legal aptitude. See, CLAD consortium has very clearly stated that you don't require any prior knowledge of law, and I am going to prove that to you. Most of the students often you get confused कि uh, first should I prepare the concepts of law and then I should attempt, uh, or there is any other way to go about legal section. क्या सर जो पढ़े पढ़ाए टॉपिक्स आ जाते हैं, डू वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस, डू वी नीड टू रीड द पैसेज इन इट्स एंटायरिटी, द और भी कई सवाल आते हैं कि क्या कितनी बारीकी में हमें लीगल सेक्शन पढ़ना चाहिए. तो मेरे सामने क्लैट 2022 का पैसेज है, इसको मैं सॉल्व करूँगा. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस चैनल का कंटेंट समझ में आता है तो. बहुत सिंपल तरीके से हम इस पूरे पैसेज को डील करने वाले हैं. तो फॉर ईज़ ऑफ कन्वीनियंस what I'm going to do, my friend, is that I'm going to clear, right, and I'm going to do a good reading before you. Yes, definitely, this passage is small and this passage is from the Constitution of India. So what I'm going to do is, you can start the timer. When I'll say start the timer, you have to start the timer, and we have to also see that how much time we are able to take to read it. The practically to solve this particular passage, we have to do it within 4.5 minutes. 4 minutes 30 seconds, because the passage length is not that much, right? So let's start. You can start the timer now, and all right, let's go. The Constitution of India guarantees to all its citizens certain fundamental freedoms which are recognized as their fundamental rights. However, these fundamental freedoms guaranteed by the Constitution of India are not absolute, as no right can be. Each of these fundamental rights is liable to be controlled, curtailed and regulated to some extent by laws made by the parliament or the state legislature. Accordingly, the Constitution of India lays down the grounds. The Constitution of India lays down the grounds and the purposes for which a legislature can impose reasonable restrictions on the rights guaranteed to citizens. The state cannot travel beyond the contours of these reasonable restrictions in curbing the fundamental rights guaranteed to the citizens. While determining the constitutional validity of a restriction imposed on fundamental right by a legislation, the court is not concerned with the necessity of the restriction or the wisdom of the policy underlying it, but only whether the restriction is in excess of the requirement and whether the legislature has overstepped the constitutional limitations. Two of the fundamental rights guaranteed to every citizen of India are right to move freely throughout the territory of India and the right to reside and settle in any part of India. However, the state may impose reasonable restrictions on these rights by law in the interest of general public or the protection of the interest of any scheduled tribes. Now, I have highlighted this particular passage, and in this particular passage, how to find out what are the principles. पूरा पैसेज ही कलर्ड हो गया है, लेकिन सबसे पहली बात हम ये समझें दैट ये बात कर रहा है आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स की, और फंडामेंटल फ्रीडम्स के साथ साथ यहाँ पे बात हो रही है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की. अब हमें ये समझना रहता है कभी भी लॉ में जब हम जाएं तो सबसे पहले हम ये समझें कि किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में, किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, पहली चीज़ समझ लेते हैं. दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या बात हो रही है, आफ्टर ऑल इसके कंटेक्स्ट में क्या कह रहे हैं. तो फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, यानी कि फंडामेंटल फ्रीडम्स जैसी तैसी दी गई हैं वो 100% वैसी नहीं होती हैं. ये जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं इनको स्टेट कंट्रोल कर सकता है, कर्टेल कर सकता है और रेगुलेट कर सकता है कुछ हद तक, राइट. कंट्रोल, कर्टेल या रेगुलेट, तीन शब्द हैं आपके जो भी आपकी फ्रीडम्स हैं. अब देखिए यहाँ पे पता हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में होना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको आर्टिकल 19 के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं. और इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप क्लास 11-12 की इंडियन पॉलिटी की किताब भी पढ़ लेंगे तो आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में पता चल जाएगा. या आप अगर लीगल स्टडीज़ की किताब को पढ़ेंगे, या आप अगर लीगल स्टडीज़ की 11th और 12th की किताब को पढ़ लेंगे तो भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा. आपको अलग से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है.
फंडामेंटल फ्रीडम्स को कौन रेगुलेट कर सकता है, हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। तो क्लार्क कंसोर्शियम ने इस पैसेज में बताया है कि दो लोग कर सकते हैं, एक स्टेट पार्लियामेंट कर सकता है, दूसरा विधानसभा कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ ग्राउंड्स बताए हैं जिसके और पर्पस बताया है, ग्राउंड्स बताए हैं और पर्पस बताया है, जिसके आधार पे लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, राइट। और कहते हैं कि जो स्टेट है जब रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो इसकी कॉन्ट्योर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बाउंड्री के बियॉन्ड जाके आपके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं करेगा। वाई जब भी बात आ जाए कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए लेजिस्लेचर ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन को अगर चेक करने की बात आ जाए जो भी फंडामेंटल राइट पे लगा रहे हैं कानून के माध्यम से, तो कोर्ट जो है वो कंसर्न नहीं होती है विद द नेसेसिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी था कि नहीं था, कोर्ट ये नहीं देखती। तो यहाँ पे हमें दूसरा प्रिंसिपल दिख रहा है। या कोर्ट ये भी नहीं देखती कि पॉलिसी क्या है, भाई पॉलिसी की विजडम क्या है, क्या सोच के पॉलिसी बनाई, लेकिन बस इतना देखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है बट ओनली वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज़ इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट और नॉट। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहे आपके फंडामेंटल फ्रीडम में, कोर्ट ये चेक करती है। दूसरा एंड लिखा है, एंड यानी पहला पॉइंट ये चेक करेगी कोर्ट और दूसरा पॉइंट क्या चेक करेगी, दूसरा पॉइंट ये चेक करेगी कि क्या लेजिस्लेचर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को ओवरस्टेप कर दिया है, बस सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2 में 2 पॉइंट्स थे, आपके यहाँ पे बता दिया कि हमारे यहाँ पे 2 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एक, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। द स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज राइट्स बाय लॉ, लॉ के माध्यम से ही इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को। और उसमें ग्राउंड्स क्या है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो या किसी शेड्यूल्ड ट्राइब का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ लॉ वॉज इनैक्टेड by the Parliament of India which consisted of a provision making it mandatory for every person riding a two-wheeler to wear a helmet, failing which the person was liable to a fine. Mr. X was a citizen of India, was fined for a violation of the said provision. Mr. X challenged the constitutional validity of the said provision. In the given situation, which of the following statement is correct? कौन से प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी इसने भाई, ये कह रहे हैं जो स्टेट ने कहा हेलमेट पहनोगे नहीं तो फाइन लगा देंगे, 2 पहिया गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट। तो ये जो कानून बनाया इसको इसने मिस्टर एक्स ने चैलेंज कर दिया। अब कॉमन सेंस की बात लगाएं तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ट्रैफिक वायलेशंस लगते ही हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं हमारे पास। लेकिन अब देखते हैं ऑप्शन ये कहता है द प्रोविजन इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई ये बताओ हेलमेट पहन के तुम्हें फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो एलिमिनेट हो गया। द प्रोविजन इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, हेलमेट पहन के तुमको कहाँ कह रहे हैं कि तुम चलो मत, ये तो नहीं कह रहे ना। आर वी सेइंग दिस? सो आई थिंक the provision is not violative of the constitution of India as because it is a reasonable restriction on the freedom to move freely throughout India. So यहाँ पे एक कैच है कि नॉट वायलेटिव है, ठीक है, बाकी आगे बकवास लिखा हुआ है, तो अभी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। मिस्टर एक्स फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया इज वायलेटेड, कहाँ से, नॉट एट ऑल वायलेटेड। नाउ सिंस वी हैव एलिमिनेटेड ए तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी एलिमिनेट हो गया, तो अब बेटर ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है, बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। हम ये कह सकते हैं कि बी इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव लेफ्ट। सिंपली कि क्या प्रोविज़न वायलेट कर रहा है, प्रोविज़न वायलेट नहीं कर रहा है। बाकी देखिए वायलेटिव वाले एक ही था, 2 थे, वायलेटिव और वायलेटिव वाले 2 ऑप्शन थे और नॉन वायलेटिव वाला एक था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 77 पे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब साथ में हमारे रीड करिएगा। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में लोकेटेड है पोस्टेड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट दे वुड होल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस
protesting against a recently passed law which made it compulsory for university students to wear uniforms while attending the classes. The students further threatened to use whatever means necessary to stop the oppression of students. ऑपरेशन जो है स्टूडेंट्स का रोकने के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाएंगे. इसीलिए स्टेट अथॉरिटी ने बैरिकेड्स लगा दिए यूनिवर्सिटी के चारों तरफ सो दैट उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकें ऑफ द स्टूडेंट्स कैरिंग आउट द डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग दैट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो वायलेंट ना हो. इसलिए पुलिस ने क्या कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी. तो बैरिकेडिंग एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन हो गया ना दोस्त, लेकिन क्यों लगाया, ताकि जो मॉब है वो वायलेंट ना हो जाए. इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्ट प्लेसिंग ऑफ बैरिकेड्स. यानी आपको सिर्फ ये चेक करना है जो बैरिकेडिंग करी स्टेट अथॉरिटीज़ ने क्या वो सही है या वो गलत है. ऑप्शंस को अब ध्यान से देखेंगे. कह रहे हैं कि जो एक्ट है वो वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बिकॉज इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया. भाई रिस्ट्रिक्शन आपने पढ़ा है कि किसी हद तक का रिस्ट्रिक्शन तो स्टेट लगा सकता है, इसलिए एलिमिनेट कर देंगे. द एक्ट इज़ नॉट वायलेटिव, द एक्ट इज़ वायलेटिव, द एक्ट इज़ नॉट वायलेटिव. तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बैरिकेडिंग का एक्ट वायलेटिव है कि नहीं है. अभी हम नहीं भी डिसाइड कर पाए तो एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं. वैसे तो एक्ट वायलेटिव नहीं है, बैरिकेडिंग लगा सकती है दंगा कंट्रोल करने के लिए. द एक्ट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. द एक्ट इज़ नॉट वायलेटिव बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी. भाई मोरालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आया, मॉरल की क्या बात है. स्टूडेंट्स क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट किन नेचर के हैं तो इमोरल हैं, इल मैनर्ड है, ऐसा हम नहीं कह सकते. मोरालिटी यूजली कैरेक्टर से चेक होती है. तो एक्ट इज़ नॉट वायलेटिव वाले दो हैं और एक्ट इज़ वायलेटिव और वायलेटिव वाले कितने हैं, इज़ वायलेटिव और इज़ वायलेटिव वाले दो. तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो सी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ए भी एलिमिनेट हो गया. अब हम बी और डी में बचे हैं, तो मोरालिटी क्वेश्चन में तो हम मार्क क्या करेंगे, बेटर ऑप्शन हमारा बी, राइट. तो आप ये याद रखिएगा कि इस तरीके से हम एलिमिनेशन यूज़ करके लीगल को अप्रोच करते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में लिखा है द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द स्टेट पास एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर ए. अब एक्सटर्नल ऑर्डर अपने को नहीं पता है तो अपन घबराएंगे नहीं, आगे इट विल मेक सेंस टू यू. एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, मिस्टर ए इज़ अ सिटीजन. द एक्सटर्नमेंट ऑर्डर प्रोहिबिटेड मिस्टर ए फ्रॉम रिसाइडिंग विद इन द स्टेट. स्टेट में रहने से मना किया फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर. Externment order was passed by virtue of powers conferred on appropriate authority by law, and the constitutional validity of this law had been upheld by the Supreme Court of India. Supreme Court ने भी कहा है कि ये जो externment जो authority है, right, which law? The law that gives power to the authority to pass an externment order was held to be constitutionally valid by the Supreme Court of India. The externment order was passed on the ground किस आधार पे, Mr. A was found to be frequently engaged in illegal business of narcotic drugs and was also involved in several cases of riot and criminal intimidation. This is the ground. नशीले पदार्थों का जो खरीद फिरौत करता था और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दंगों करवाने में मेन मुजरिम भी है. इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सटर्नमेंट ऑर्डर. क्या ये इसको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में रिसाइड करने से जब मना कर रहा है कोई स्टेट, तो वो एक्शन सही हो सकता है कि गलत हो सकता है. अब देखते हैं ऑप्शन क्या है. तो ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ वायलेटिव ऑफ मिस्टर एज फंडामेंटल राइट, इट इज़ एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिस्टर ए. तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाले दो हैं ऑप्शन, और एक है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला और एक है इट इज़ वायलेटिव ऑफ मिस्टर एज फंडामेंटल राइट. अब देखते हैं. इट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन मिस्टर एज फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. फ्री मूवमेंट पे तो रिस्ट्रिक्शन हमारा ये है नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन द फ्री मूवमेंट. बट हमें अभी चेक करना पड़ेगा बाकी सारे ऑप्शंस को भी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कह रहे हैं कि आप कहाँ पे रिसाइड करिए, प्रोहिबिटेड ए फ्रॉम रिसाइडिंग विद इन द स्टेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. अब ऑप्शन बी देखें. इट इज़ एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिस्टर एज फंडामेंटल राइट ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. राइट, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया पे अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जस्टिफिकेशन दे दिया है नारकोटिक्स वाला. इट इज़ वायलेटिव ऑफ मिस्टर एज फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं होगा. अब है इट इज़ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिस्टर एज फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ए है इट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन मिस्टर एज फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया. अब फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया की बात पे हम
फंस रहे हैं यहाँ पे कि फ्री मूवमेंट कहाँ है। तो हमने कौन से दो राइट्स पढ़े थे अपने पैसेज में? अपने पैसेज में हमने दो राइट्स पढ़े थे, एक राइट टू सेटल एंड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, एंड दूसरा पढ़ा था मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। तो अब यहाँ पे फिर से एक बार स्टेटमेंट को, सिचुएशन को समझ लेते हैं। कहा एक्सटेंडमेंट ऑर्डर ने प्रोहिबिट किया विद इन द स्टेट फ्रॉम दिस, द एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पास बाय वर्च्यू ऑफ लॉस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हैपेंड विद द 6 ऑर्डर वाज ऑन द ग्राउंड स्टे दिस राइट। तो अब हमारे पास ये है कि क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या अनरीजनेबल। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वी आर ओनली लेफ्ट विद ए, वी आर ओनली लेफ्ट विद अ प्रॉपर आंसर दैट इज़ ए, एंड 78 का आंसर इसलिए ए हो जाएगा। यानी कि बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज़ करना होता है आपको। देयर इज़ नो बेस्ट ऑप्शन। बाल की खाल निकालेंगे तो फंस जाएंगे। देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो यही है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन नॉट द बेस्ट ऑप्शन, राइट। तो अभी हमने देखा कि यार यहाँ पे तो फ्री मूवमेंट की बात नहीं है, ये तो रिसाइडिंग वाला राइट है। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन उचित बचा भी नहीं ना। 79 आ जाते हैं। मिस्टर जी वापस से एक सिटीज़न ऑफ इंडिया है जिसको इशू किया गया था, एक पासपोर्ट इशू किया गया था 1 जून 2020 को। अब बात कर रहे हैं पासपोर्ट की, तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए कि पासपोर्ट क्यों इशू करते हैं जब आपको एयर ट्रैवल करना रहे और आपको आउट ऑफ कंट्री जाना रहे। जब आपको आउट ऑफ कंट्री जाना रहे तो आपका पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट ऑफिस ने किया। मिस्टर जी वॉज ड्यू टू ट्रैवल टू स्पेन, देश के बाहर जा रहे थे 15 जुलाई 2021 को। जुलाई 11 2021 को मिस्टर जी का को एक लेटर मिलता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से, जिसमें उनको सूचना दी जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो उनके पासपोर्ट को सीज़ कर रही है। किस इंटरेस्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट में। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। मिस्टर जी वॉज रिक्वायर्ड टू सरेंडर द पासपोर्ट विद इन 7 days, यानी रीजनेबल टाइम पीरियड भी इनको दिया गया। रिसीट ऑफ दैट लेटर, जब पत्र मिले तो उसके 7 दिन के बाद अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें। इस सिचुएशन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मिस्टर जी कैन चैलेंज। अब देखिए, मैं बोल के आपको समझाते हुए मैं बोल रहा हूँ तो मुझे 4-4.5 मिनट से ज़्यादा लग चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको फास्ट ट्रैक रीडिंग में करें और मन में पढ़ते हुए करें तो हमें यही एक एप्टीट्यूड है, यही एक एबिलिटी है जो डेवलप करनी है कि कठिन से कठिन पैसेजेस, सिंपल से सिंपल पैसेजेस को एट मैक्स हम 6 मिनट के ख़त्म करें। तो यहाँ पे पासपोर्ट की बात है। पासपोर्ट का मतलब है दैट यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री, और हमारा जो राइट्स का स्कोप था वो विद इन द कंट्री ही लिमिटेड था। अब ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर जी कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ वायलेटिव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के बाहर की बात होती है पासपोर्ट में, तो ए एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज दिस पार्ट डज नॉट मेक सेंस। Mr. Z can challenge the letter on the ground that it is violative of his fundamental right to reside and settle in inner part of India. Passport has nothing to do with your settlement. Mr. Z can challenge the letter on the ground that it is violative of a law relating to passports in India. What is the law? That is coming into our mind. Passports का law जो है वो यहाँ पे mention किया गया है क्या? Passports का law कोई mention है? बोलिए, नहीं mentioned है, तो ये C हमें doubt दे रहा है। Mr. Z cannot challenge the letter on the ground that it is violative of his fundamental right to free movement throughout the territory of India to residence settlement in any part of India. Dear, he was planning to go to Spain outside India. कहाँ जा रहा था वो? स्पेन जा रहा था। स्पेन जाने के लिए उसने पासपोर्ट बनाया था। जब बात हो गई आउटसाइड ऑफ इंडिया की और पैसेज का स्कोप क्या है? इनसाइड इंडिया है, तो पैसेज के स्कोप के बियॉन्ड हो गया ना सिचुएशन। हेंस डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से फाइंड करेंगे। आखिरी सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ मैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पैसेज के कंटेक्स्ट में। देखिए, बार बार यही कहूँगा, नो एडिशनल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, नो एडिशनल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। ये रूल है, ये हमेशा से एक रूल है, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा होगा कि पूरे लीगल सेक्शन में 40 क्वेश्चन जब पहले आते थे तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटपटे आ गए। क्लाइड कंसोर्शियम बाद में ऐसे क्वेश्चन को कैंसिल करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है, आप घबराइएगा नहीं। क्लाइड कंसोर्शियम पेपर कराने के बाद एक बार पेपर को रिव्यू करता है बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लेंट्स दैट स्टूडेंट्स उसको भेजते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर सैक्रोसैंक्ट एंड आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। इस स्टेटमेंट में क्या बुराई है? सभी तो सही लग रहा है अभी, ठीक है। इसको डॉट मार के रखेंगे। Fundamental right to movement and residence in any part of India are sacrosanct but are guaranteed subject to reasonable restrictions on the such rights। तो भाई ये भी तो पैसेज में दिया ही हुआ था, तो बी भी सही है।
Reasonable restrictions may be imposed on fundamental rights to movement and residence in any part of India. लिखा है may be, यहाँ पे अगर shall लिखा होता तो काट देते, कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो बी भी सही है। अब जब ए बी सी प्रत्यक्ष रूप से सही है तो बचता क्या है हमारे पास, डी। बचता क्या है हमारे पास, डी। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी चैलेंज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड बाय सिटीजन बिफोर द लेजिस्लेचर, क्वेश्चन मार्क। यानी कि कह रहे हो कि तुम संसद भवन में जाके, जो संसद ने कानून बनाया है, संवैधानिक वैलिडिटी चेक करनी है आपको एक लॉ की जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स पे, और आपको वो आदेश चेक कर रहा है कि वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो ये आप सदन के सामने जाके करोगे या आप ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके करोगे। पैसेज में नहीं दिया हुआ था, पैसेज में दिया हुआ है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी, और साथ में यहाँ पे आपको एक पैसेज में एक चीज़ और दिखाई देगी, पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टेट है क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, लेकिन जब भी बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने की, तो कोर्ट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द नेसेसिटी बट द कोर्ट इज़ कंसर्न्ड विद वट एवर आगे दिया हुआ है। यानी कि यू कैन check the constitutional validity not before the legislature but before the court. This statement is correct and hence D is the correct answer. Now this is the simple logic that we use to solve passages in legal. Remember, there is this rule: the smaller the passage, the tougher the questions. The smaller the passage, the tougher the questions. So that is why you need to solve passage by passage previous year exercise. If you really enjoy this video, please tell me in the comment section, put a thumbs up. In the next video, then only I will be discussing the next paragraph for you, where we are going to discuss a very important topic about laws related to marriage and laws related to contract, and what happens to marriage once husband and wife choose to end up the marriage. So I will be sharing the explanation of this particular passage in the next video only if you show me a very good sign, good thumbs up, good reaction on this particular video. I'll see you in the next.